hope you are doing well. This is your monthly reading. ये जो नवंबर का मंथ है, नवंबर 2021, ये आपका कैसा रहने वाला है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी रहने वाली है, ओवरऑल ये मंथ कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप, करियर, एजुकेशन, ये मंथ कैसा रहने वाला है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर. आई मीन फर्स्ट वीक में ही नवंबर के दिवाली. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिवाली. It's the festival of light and yes, Diwali. I get really happy when it's Diwali time. I do. So यहाँ पर जो है ये रीडिंग आपके साइन बेस्ड होगी, मून साइन बेस्ड, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स आवर मदर, इमोशंस, नरिशमेंट, पीस ऑफ माइंड. It's our comfort zone. So moon really becomes important. And I mean Lagna or Arudha or Navamsha also becomes important, sun sign also becomes important, but moon is the mind. It's our way of thinking. So ये ज़्यादा important है. So I mean according to many other astrologers, yes, moon is important, but yes, some of them do consider sun sign, some of them do consider the Lagna, but I personally like to do readings with the moon sign more than sun sign or Lagna, because moon is the mind. So you have to think from the mind, right? तो यहाँ पर ये मून साइन पर बेस्ड होगी. जो आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर आपका जो ये मून है वो कौन से साइन में प्लेस्ड है उसके बेसिस पर ये रीडिंग है. सो यहाँ पर मैं आपके लिए पाइल्स भी रेडी कर देती हूँ. अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो आप इंटुइटिवली भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो. जिस भी साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उस साइन से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो. इफ़ यू फील लाइक that I want to transform myself, I am feeling transformative, I want I have to do things related to secrecy, tarot, choose Scorpio sign. If you are a person who is very much interested into dealing with obstacle or problems of other people, like a lawyer does or like a CA do or an astrologer does, they solve other people's issue, then you can choose the Virgo sign. If you are detail oriented and you want to work in a detail oriented manner, then choose the Virgo sign. If you are a person who want to just focus on their career, then choose the Capricorn sign. You want that fame, name, reputation, choose the Capricorn sign, because it represents the 10th house of profession, fame, name, recognition, reputation in the society. If you are a person who wants to travel to foreign distant land, you can choose the Pisces sign, because Pisces is foreign distant land. If you want to gain more education, you can choose Sagittarius sign. So जो भी साइन जो है आपको अपना मतलब आप उससे कनेक्टेड फील करते हो उस साइन से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, या फिर आप इंटुइटिवली अपनी पाइल भी चूज़ कर सकते हो. यहाँ पर 4 पाइल्स होंगी, बिकॉज दिस इज़ दी योर अग्नि, बेसिकली तत्वा बेस्ड रीडिंग, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्वा. So this is going to be pile number 1, which is of fire signs, Agni signs like Aries, Leo, Sagittarius. Then we have the pile number 2, which is of your moon in your Prithvi signs like Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have pile number 3, which is going to be the Vayu pile, Gemini या फिर Libra या फिर Aquarius में अगर आपका moon placed है, then you have to choose pile number 3. If your moon is placed in the Jala Tattva or Jala signs like Cancer, Scorpio, Pisces, then you have to choose pile number 4. So आप जो intuitively भी यहाँ पर choose कर सकते हो. I'm not giving any stone or anything. I just want you to choose intuitively. Use your intuitive power. और जिस sign से आप सबसे ज़्यादा connected feel करते हो उस sign से भी आप जो हो ये reading देख सकते हो and it will resonate. तो यहाँ पर जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी. उससे पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं देन आई ऑल्सो डू पर्सनल रीडिंग. उसमें आपके एस्ट्रो टैरो रीडिंग आती है, नक्षत्रा कुंडली रीडिंग आती है. जो एस्ट्रो टैरो रीडिंग है उसके अंदर आपके बर्थ हॉरोस्कोप नक्षत्रास इंक्लूडेड होंगे, एंड ऑफ कोर्स टैरो स्प्रेड. जो आपकी नक्षत्रा कुंडली रीडिंग है उसके अंदर करियर कंसल्टेशन, उसके अंदर मैरिज कंसल्टेशन, उसके अंदर आपकी हॉरोस्कोप मैचिंग, एंड देयर इज वन मोर
reading on my website, which is the unique Navamsha reading. It tells us about our spiritual life, life after marriage, or second half of our life. And basically it's a reading of D9 chart, the Navamsha chart. It's the one of the most important divisional chart in Vedic astrology, because it's the heart of your blueprint. The blueprint is the D1 main birth horoscope, whereas the heart or the strength we have to see, so we see it from the Navamsha. So uski reading hai, so that is also available. You can check all these things on my website and get more information about these reading on my website. So let's just get started. Pile number 1 हम शुरू करेंगे moon in Agni signs like Aries, Leo and Sagittarius. स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the Agni signs because your moon is in Agni signs like Aries, Leo and Sagittarius. So let's just get started. First हम देखेंगे कि आपकी overall जो है ये overall month कैसा रहता है, ओवरऑल क्या चीज़ें हो रही है आपके लिए. देन आपके जो एक इमोशनल मेंटल लेवल है, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आपकी एनर्जी है इस मंथ. देन हम आपके टेरो कार्ड्स और ऑफ कोर्स ओरेकल कार्ड से निकालेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. Alright, so let's just get started. यहाँ पर okay, we have the dawn, the new beginning. Goodness, it's again a very beautiful card, I would say. Dawn, it is representing एक नई सुबह, कोई नई चीज़ जो है आप इस मंथ शुरू कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए. पाइल नंबर 1, आई रियली फील दैट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट आपका रूटीन बदलना. somehow you will start to feel कि I should change my routine. मैं अब जो हूँ lethargic नहीं होना चाहता हूँ. You want to start afresh. आप जो हो एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अपनी रूटीन की, अपनी सुबह जो है आप यूटिलाइज करना चाहते हो. मे बी यू गो इनटू गेट इनटू फिटनेस, मे बी योगा आप ज्वाइन करते हो, योगा क्लास आप ज्वाइन करते हो, बट यू आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू योर फिटनेस. और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ज़्यादा लेने लग जाओ क्योंकि आप इंग्लिश मेडिसिन छोड़ रहे हो. एंड सम आई ऑल्सो फील दैट आप कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो. उन हेल्थ इश्यूज को आप ठीक करना चाहते हो परमानेंटली. सो यू वांट टू गो विद आयुर्वेदा, यू वांट टू गो विद योगा, दीज थिंग्स, एंड यू वांट टू बी नियर नेचर एज वेल. somehow I also feel pile number 1, it is also a new dawn, a new beginning in your I feel personal life as well. मतलब आपके जो relationship, family love relationship या romantic relationship, again there is this start, beginning, something new, fresh. यहाँ पर कोई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू होती हुई नज़र आ रही है. And let's just get started with some more cards for you. यहाँ पर जो overall tone है आपके month की, major arcana जो है यहाँ पर क्या आ रहा है overall tone इस मंथ की आपके लिए. ओके, वी हैव द फूल कार्ड विच इज द इनिशिएशन. एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, इट्स अबाउट इनिशिएशन. द फूल इज द फर्स्ट कार्ड इन आवर टेरो एज वेल. देन वी हैव द मैजिशियन विच इज द सेकंड कार्ड. I really feel pile number 1, you are beginning something, you're starting something new, and then उसमें आप माहिर हो जाओ, उसमें आप जो हो अपनी स्किल डेवलप कर लो. शुरू में ऑफकोर्स यहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, एक नए रूटीन को बनाने में मुश्किलें आप फेस कर सकते हो, पर स्टिल आई फील कि ये जो नया रूटीन आप बना रहे हो उसके अंदर आप सेट फिट बैठ जाओगे. बट ये शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, बट देन आप इसके अंदर जो हो ईजिली
यू विल डू थिंग्स। कई बार जब हम जल्दी उठते हैं सुबह तो हम अच्छा नहीं फील करते हैं, बट उसकी हैबिट बनानी पड़ती है, तो वो हैबिट आप बनाते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ऑफकोर्स द फूल कार्ड इज डेफिनेटली शोइंग, फूल इज मर्क्यूरी बेसिकली, इट्स मर्क्यूरी इज वेरी वेरी क्यूरियस प्लैनेट, इट शोज क्यूरियोसिटी, इट शोज यंग एट हार्ट या चिल्ड्रन। सो आई फील कि आप जो हो एक यू आर क्वाइट यंग एट हार्ट दिस मंथ, और आप कोई चीज़ भी सीख सकते हो, लाइक राइटिंग और पेंटिंग और स्किल्स ऑफ हैंड्स बेसिकली, वो आप यहाँ पर सीखते हुए नज़र आ रहे हो। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वो भी हो सकता है। जो ये मैजिशियन कार्ड है, उषा, विच इज़ द गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन यानी सुबह की गॉडेस, इट्स उषा। सो यहाँ पर जो है अगेन इट्स अबाउट मॉर्निंग, इट्स अबाउट इनिशिएशन, इट्स अबाउट स्टार्ट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप इनिशिएट करते हो इस मंथ में नज़र आ रहे हो, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, यू आर हैप्पी अबाउट इट। ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये करना ही करना पड़ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपको अपनी लाइफ में लेकर ही आनी पड़ रही है। नो, इट्स ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपका मन चाहता है, ये मन करता है आपका, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड सम ऑफ यू ऑल्सो will become more spiritual, and I also feel ये magician कार्ड में भी उषा यहाँ पर जो है यहाँ पर जैसे एक तरह से विंड निकल रही है मुंह से भी, नोज से भी। सो आई रियली फील प्राणायाम, कपाल भारती, अलोम विलोम, ये चीज़ें करना आप ये शुरू कर सकते हो। इवन नेति इज़ द द इन आयुर्वेदा वो एक जो नॉस्ट्रिल से पानी डालते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं, दैट्स नेति। सो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ आयुर्वेदा से रिलेटेड, कुछ ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड, कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आप अपनी बॉडी के लिए, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हुए इस मंथ नज़र आ रहे हो, पाइल नंबर 1। सो यहाँ पर जो है आपके, अब हम शुरू करते हैं आपके जैसे ओवरऑल मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, इमोशंस, आप क्या फील कर रहे हो, क्या एनर्जी है पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 की क्या एनर्जी है इस नवंबर के मंथ में। ओके, सो वी हैव द लवर्स कार्ड, ऑल राइट, अ ब्यूटिफुल कार्ड, लवर्स कार्ड, मन लगा हुआ है आपका। एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड आई वुड से। मन आपका लगा हुआ है, और आई रियली फील दैट यू आर वेरी प्रोडक्टिव, यू आर इन अ मूड टू कंप्लीट योर एवरी टास्क, एंड आप कल पे चीज़ें नहीं डालना चाहते, आप हर चीज़ जो हो आज करना चाहते हो, आज में बिलीव कर रहे हो। नवंबर में इतनी लथार्जी यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके पास बहुत सारे जो है करने के लिए चीज़ें आ रही है, एंड यू आर वेरी बिजी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिजी हो तो आपको स्ट्रेस आएगा, तो आप अच्छा नहीं फील करोगे। नो, आपका मन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। एंड आई ऑल्सो फील, क्योंकि आप जल्दी उठ रहे हो या अपना रूटीन इस वे से सेट कर रहे हो कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, तो आप पे वो बोझ नहीं पड़ रहा कि लेट उठे, फिर उसके बाद दोपहर में काम शुरू करा, फिर काम जो है ज़्यादा है तो कल पे वो चला गया, और कल का काम तो है ही सो है, तो वर्क पेंडिंग हो गया, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आप काफ़ी ज़्यादा जो हो इन रूटीन नज़र आ रहे हो, और आप काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। पर एक होता है कि वर्क हार्ड करते हुए हमारा एफर्ट ज़्यादा लगना और हम थका हुआ फील करें, यहाँ पर वो थकावट नहीं फील हो रही है आपको। यहाँ पर आप मन लगा के काम कर रहे हो, एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन दिस मंथ ऑफ नवंबर। काम है पर पैशनेटली आप कर रहे हो, और वक्त पे कर रहे हो सारा काम, काफ़ी खुश होके कर रहे हो सारा काम। यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट योर वर्क। और अगेन यहाँ पर जो है मैजिशियन कार्ड में एक तरह से इट ऑल्सो शोज कम्युनिकेशन। मर्करी इटसेल्फ इज द कारका ऑफ कम्युनिकेशन, सो दैट्स वाई इन मर्करी रेट्रोग्रेड हमारा कम्युनिकेशन जो है हे वायर हो जाता है। बट बिकॉज मर्करी इज़ नाउ इज़ डायरेक्ट, तो अब हमारा कम्युनिकेशन, एनालिटिकल, लॉजिकल पावर सही आ चुकी है। यहाँ पर जो है आपकी एनालिटिकल, लॉजिकल पावर, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, इसलिए कोई स्ट्रेस यहाँ पर मन पे, आपकी एनर्जी पर नहीं नज़र आ रहा। यू आर वेरी फोकस्ड, आप जो तीर मार रहे हो या फिर एक तरह से जो आपका निशान है, जो आप करना
चाहते हो, जैसे तीर है या जो करना चाहते हो, वो जो एरो है वो उसी जगह पर लग रहा है जहाँ पर आप लगाना चाहते हो। तो जो भी आप एफर्ट कर रहे हो वो सही कर रहे हो, उसका रिजल्ट भी आपको जल्दी ही यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर लेट मी जस्ट पुल वन ओरेकल कार्ड फॉर यू अबाउट योर energy for this month of November 2021. All right, so we have the overcoming obstacles. You can overcome anything, which is so true. ये वाला जो month है, I really feel pile number 1, it is kind of a magical month for you. बिकॉज इस मंथ में आप चीज़ें कॉन्कर कर रहे हो, इस मंथ में आप चीज़ें जो हो ओवरकम कर रहे हो। अगर आपके पास ऑब्स्टिकल्स भी आ रही है, सी 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक ऐसा कार्ड है जो शो करता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट थोड़ा फिर भी स्ट्रेस फील करना। बट क्योंकि लवर्स कार्ड है, सो यू आर टेकिंग दी, आई शुड से यू आर नॉट टेकिंग द स्ट्रेस, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। टाइम पे चीज़ें हो जाती है आपकी कंप्लीट, तो स्ट्रेस नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी जो है ये ओरेकल कार्ड भी यही कह रहा है दैट यू आर overcoming obstacle in this November month. You're overcoming obstacles आ रही है, hurdles आ रही है, competition आ रहा है, आप उसमें जीत रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पर जो है when it comes to your करियर से रिलेटेड यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए। करियर से रिलेटेड यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 1। ऑल राइट, सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, यू आर डीलिंग विद ऑब्स्टिकल्स दैट कैन बी सीन। देन वी हैव 2 ऑफ पेनिकल्स, मीनिंग दैट यू आर जगलिंग एंड स्ट्रगलिंग। बट अगेन ये जो 2 ऑफ पेनिकल्स है, ये 2 ऑफ पेनिकल्स एक और चीज़ शो करे दैट यू मे डील विद इनफाइनाइट इश्यूज, इनफाइनाइट ट्रबल्स, इनफाइनाइट ऑपोजिशन। पर यहाँ पर बिकॉज इट्स लाइक सी 2 ऑफ पेनिकल्स, पेनिकल्स इज द एनर्जी ऑफ अर्थ, तो अब स्टिल जो हो ठहराव है आपके अंदर, वो स्टेबिलिटी है कि अगर ये 1000 आई शुड से एक इनफाइनाइट अगर आपके पास जो है इश्यूज आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आपके पास आ रहे हैं। मन जो है काफ़ी फायरी है, काफ़ी पैशनेट है काम करने के लिए। सो यू विल ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स एज वेल। आई वुड से कि यहाँ पर जो है 2 ऑफ पेनिकल्स शो करता है टाइम मैनेजमेंट करना, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जितनी आप ये मैनेजमेंट करो इससे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की इन टर्म्स ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क काफ़ी है, वर्कलोड इज़ देयर। मतलब एजुकेशन में भी हो तो एजुकेशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना, लर्न करना पड़ सकता है। अपने आप को जो हो, आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, हर चीज़ को मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी है वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इन टू योर लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, बैलेंसिंग द बजट। तो समहाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट मनी, फाइनेंस, दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है खर्चा आपका, एक्सपेंडिचर आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। बट येस, करियर में, एजुकेशन में, इवन फाइनेंसेस को बैलेंस करने की, बजटिंग करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर आप वो करते हुए फिर भी नज़र आ रहे हो, टाइम को मैनेज करते हुए फिर भी नज़र आ रहे हो। आप हर चीज़ को जो हो वक्त देना चाहते हो, इसलिए जल्दी काम पे लग जाते हो, जल्दी जो हो आप जल्दी उठ जाते हो, या समहाउ यू मैनेज योर वर्क, यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर वर्क। कहीं ना कहीं कुछ दिनों में जो है ऐसा हो सकता है कि आप अपना वर्क मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं वर्क पेंडिंग रह रहा था। इस वजह से आप ये चाहते होगे कि नेक्स्ट मंथ जो हूँ मैं हर चीज़ को बैलेंस आउट कर लूँ, एक नई शुरुआत करूँ, एक न्यू डॉन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। स्पेशली यहाँ पर जो है नंबर 8 भी है। नंबर 8 इज़ लाइक इन्फिनिटी, and 8th sign or the sign of Scorpio is about transformation, death and rebirth। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि पुराना ख़त्म होना, नया शुरू होना, पुरानी चीज़ें बाय करना, नई चीज़ शुरू करना।
तो एक तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर जो हो, आई वेरी फील इट्स रिलेटेड टू द रूटीन, उसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो। ये जो 5 of Wands है, इट इज ऑल्सो शोइंग कन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज ready, worth your time, then stand up for yourself, very ambitious people. So I really feel that you are yourself very ambitious, you are yourself very passionate, as I've told you before as well, and the people you deal with, जो लोगों से आप डील भी करते हो in this month of November, वो भी फायरी हैं, वो भी गो गेटर्स है, वो भी जो है अपना माइंडसेट लेकर आए हैं और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर आए हैं। सो एडजस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है, ये चीज़ होगी, यहाँ पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अकेले यहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं, हमें एक ग्रुप या हमें एक टीम ज़रूर बनानी पड़ती है, और टीम बनाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो विद दिस फायर पैशन एग्रेशन एक लीडरशिप पावर भी अपने अंदर लेकर आओ, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दो, बिकॉज ये जो 5 of Wands के डायरेक्टली ऊपर वी हैव द फूल कार्ड विच रिप्रेजेंट्स मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज कम्युनिकेशन। तो अपने कम्युनिकेशन पर भी जो हो ध्यान दो, जहाँ पर आपको लगता है कि बिना कन्फ्रंट करे बात चल सकती है, रिलेशन क्यों खराब करने, तो इट्स ओके। बट अगर आपको लगता है कि बहुत ही नाजायज़ हो रही है मेरे साथ, तो ऑफकोर्स यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बट चूज़ योर बैटल्स वाइजली, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए और एक ओरेकल कार्ड निकालते हैं, हिपर्स डेक। यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है उनके करियर से रिलेटेड। ऑल राइट, सो वी हैव मेल again, it's about you are becoming this powerful person, pile number 1, really you are becoming this powerful person जो एक तरह से परफेक्ट भी है। दूसरे लोग कह सकते हैं that you have really improved yourself, आप अपने आप पर वर्क करते हो, ये नज़र आता है। यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, यू आर वर्किंग ऑन योर करियर एज वेल। और अगर हम मेंटल हेल्थ की भी बात करें, वो भी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर। सो आपकी एक बैलेंस्ड सिचुएशन भी है, इट्स स्टिल बैलेंस। यहाँ पर जो है ये इम्बैलेंस जो नज़र आ रहा है, इस इम्बैलेंस की वजह से आप बार बार जो बैलेंस करते हो अपने आप को। सो दूसरे लोग ये कहते होंगे ज़रूर, आपको ये कहेंगे कि इन द मंथ ऑफ नवंबर पीपल आर गोना से टू यू दैट यू हैव बिकम वेरी बैलेंस्ड। क्योंकि अगर आप किसी भी एक बैलेंस्ड पर्सन को देखो, असल में रियलिटी ये होती है कि वो बिहाइंड द सीन्स हमेशा चीज़ों को बैलेंस करते रहते हैं, हमेशा चीज़ों को जो है सेट करते रहते हैं। अगर उनका कमरा हम हमेशा सेट देखते हैं, मीनिंग कभी तो वो गंदा हुआ होगा ना, कभी तो वो इम्बैलेंस्ड हुआ होगा, और बिहाइंड द सीन्स उस पर्सन ने उस चीज़ को बैलेंस करा। तो यहाँ पर भी जो है चीज़ें इम्बैलेंस होगी, करियर में इम्बैलेंस होगा, बट यहाँ पर जो है वो उस इम्बैलेंस को आप बैलेंस आउट कर लोगे, आपके पास ये कैपेसिटी है। चीज़ें जो है, ऑफकोर्स लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ नॉट कप ऑफ टी, इट्स हार्ड, यू हैव टू डू एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो आप। एंड दैट्स वाई यू आर बिकमिंग दिस अ पर्सन जिसको लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये पर्सन बहुत आगे निकलेंगे, क्योंकि ये पर्सन हार्ड वर्क भी करते हैं और काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आते हैं, और हमेशा जो है इवन इनकी हेल्थ की भी बात करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा फिट रहती है। सो ऑफकोर्स दिस पर्सन, आई मीन यू, पाइल नंबर 1, आर इवन गेनिंग फेम इन योर लाइफ इन दिस मंथ ऑफ नवंबर। सो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। सो यहाँ पर जो है आपके लिए जो आपके लव रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप है, बेसिकली आपके जो लोग हैं जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करते हैं, जिनसे आप बातचीत करते हो, चाहे वो फैमिली है चाहे वो रोमांटिक पार्टनर है, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहता है। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स अगेन, इट्स काइंड ऑफ बैलेंस्ड हियर, इट्स काइंड ऑफ बैलेंस्ड हियर एज वेल। And then we have death and rebirth. As I was telling you, I was saying that 8 of Wands, number 8, infinity, it's the 8th house or sign of Scorpio, is death and rebirth, transformation. You're transforming yourself for good in this November month. It's all about transformation. It's all about के इवन इन योर रोमांटिक लव रिलेशनशिप्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। ऐसा हो सकता है पहले जो हो आप अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स से इतना ज़्यादा जो हो पेशेंटली डील नहीं करते थे, बट इन द नवंबर मंथ आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ रही है,
आई रियली फील दैट यू आर यंग एट हार्ट बट यू नो कि कब कौन सी बात करनी चाहिए, सो यू आर वेरी टैक्टफुल इन रिलेशनशिप्स, ये नज़र आ रहा है. एंड पेज ऑफ पेनिकल्स इज अगेन शोइंग दैट यू नो कि स्टेबल एंड सिक्योर होना, सिक्योर फील करना, दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. एंड ये जो डेथ एंड रीबर्थ है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट somehow you may take next step in your romantic relationship if you are in a romantic relationship of course, and somehow कोई friendship भी एक romantic relationship में convert हो सकती है in the month of November for you. And I feel that again it's this month is all about new beginnings, meaning पुरानी चीज़ end, नई चीज़ की शुरुआत, death and rebirth, transformation, change in your perspective towards life, वो चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए. यहाँ पर जो है एक और कार्ड निकालते हैं for your love relationship. Alright, so we have curiosity. सी मर्क्यूरी इज ऑल्सो क्यूरियस. अगर हम इंग्लिश का एक वर्ड देखें दैट्स मर्क्यूरियस. मर्क्यूरियस का मतलब होता है चिलबिला होना, क्यूरियस होना किसी बात को लेकर. बेसिकली मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स क्यूरियोसिटी, और यहाँ पर भी जो है क्यूरियोसिटी का कार्ड आया हुआ है फॉर योर लव रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, मीटिंग न्यू पीपल. आई रिमेंबर वॉट अ ट्रेजर trove of opinions, interests and stories they are, but these treasures will only be unlocked if I embrace my curiosity. So I'll be curious and you be interesting. Deal? So it's about I mean pile number 1, it's about कि दूसरे लोगों को जानना, दूसरे लोगों के उनसे बात करना, उनका पर्सपेक्टिव सुनना, उनका इंटरेस्ट, उनका ओपिनियन सुननी, उनकी लाइफ की स्टोरी सुननी. एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर करियर. आई मीन द पीपल यू मीट इन योर करियर, उनके साथ भी, जैसे कुलीग के साथ जो आपका रिलेशन है या फिर आपके क्लाइंट के साथ जो रिलेशन है, समहाउ आप उनकी ओपिनियंस को सुनोगे. दैट्स व्हाई देयर इज दिस ओपोजिंग ओपिनियन, यानी आपको ऐसा फील होगा कि उनकी ओपिनियन आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट आप उनको भी जो हो समझने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर बीइंग क्यूरियस अबाउट अदर पीपल, अबाउट रिलेशंस, यू आर वेरी क्यूरियस. और कहीं ना कहीं आप इस मंथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, प्लस आप एक अच्छा कम्युनिकेट तो करोगे ही करोगे, आप अच्छे लिसनर भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो. एंड आई रियली फील दैट दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी. आई कैन नॉट से कि यहाँ पर इम्बैलेंस है, यहाँ पर इस चीज़ को जो हो ठीक करने की ज़रूरत है. नो, आई कैन नॉट से दैट, बिकॉज स्टिल काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस्ड एनर्जी है यहाँ पर. एक ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आप अपनी लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर, पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू फॉर दिस मंथ. And I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. So your moon is placed in the in the earth sign, Prithvi signs like Taurus, Virgo or Capricorn, or you chose this pile because you are connected to these, you feel a connection with these signs and you got attracted to this card, pile number 2 का card. So let's just get started. यहाँ पर आपके लिए क्या message? Okay, we have childhood, innocence. I really feel that because when अभी मैंने देखा, अभी डायरेक्ट अभी I saw the color green here. चाइल्डहुड, इनोसेंस में क्यूरियोसिटी भी होती है, नई चीज़ों को जानने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए, हॉबीज़ डेवलप करना और नेचर के करीब रहना, खेलना कूदना, बेपरवाहपन, ये चीज़ है ना चाइल्डहुड, ये चीज़ है ना, ये वाला ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है. समा ऑफ कोर्स इट शोज द मर्क्यूरी. Pile number 2, I really feel that your Mercury is what? Being curious. You're being curious in the month of November. I really feel that this is also about you may travel to a semi-urban or a rural area. आप नेचर के करीब रहना ज़्यादा पसंद करो. कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जो हो आप ब्रेक लेना चाहो, कहीं ना कहीं रीजुबिनेट आप करना चाहते हो और थोड़ा हल्का महसूस करना चाहते हो, तो ट्रैवल कर रहे हो एक ऐसे रूरल सेमी अर्बन एरिया में. कहीं ना कहीं आप जो हो अपने पिछले पुराने दोस्तों से भी यहाँ पर मुलाकात करो इन दिस मंथ. एंड यहाँ पर जो है अगेन इट्स अबाउट ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो आप लेना चाहते हो. ओवरऑल जो इस मंथ की वाइब्रेशन है, इट्स अबाउट के
थोड़ा ब्रेक लेना, बेपरवाहपन होना, और एक इनोसेंट और एक क्यूरियस वे से जो है ये मंथ की शुरुआत करनी है, पूरे मंथ इस वे में रहना, और टेंशन स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हो और रहोगे भी इन दिस मंथ बिकॉज यू आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ। ओवरऑल जो इस मंथ का जो है, एक तरह से अगर हम ये देखें कि ये कैसा रहने वाला है, ओवरऑल जो इस मंथ की वाइब्रेशन है, वाइब है आपके लिए नवंबर मंथ की ओवरऑल क्या है। ऑल राइट, सो वी हैव द एम्परर हेयर। ओके, यू आर ऑल्सो टेकिंग चार्ज हेयर, यानी कॉन्शियस एफर्ट्स आप यहाँ पर कर रहे हो। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। एज आई टोल्ड यू, you will travel here in this month, pile number 2, you are destined to travel in this month। and यहाँ पर ओवरऑल जो अगेन फर्स्ट दिस इज द ओवरऑल एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ दिस मंथ, एंड देन विल पुल द कार्ड्स फॉर योर इमोशनल हेल्थ, mental health, and then we'll pull the cards for your career and relationships. So first of all, the overall month, the overall vibration of the month, I really feel that you are taking charge here. You are taking the decision on your own. ये नहीं कि इस पर्सन ने मुझे ये कहा था तो मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। नो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, अपने मन के मालिक बन रहे हो। जैसे एक बच्चा है, वो अपने मन का मालिक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर जो हो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो बच्चा सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, वो अपना बेपरवाह बादशाह है। ही इज़ द किंग, ही इज़ द एम्परर। तो यहाँ पर आप वो किंग, वो आप एक एम्परर यहाँ पर अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो और खुद डिसीजंस ले रहे हो। और यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड, सो हियर इट इज शोइंग, सी वी ऑल्सो हैव लोटस विच इज़ लाइक द सिम्बॉलिज्म ऑफ नॉलेज। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कोई न्यू सब्जेक्ट, कोई न्यू चीज़ के बारे में भी जानना पसंद करो। मे बी यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, मे बी यू डेवलप एन इंटरेस्ट और आई शुड से कि ऑफकोर्स ये फार्मिंग और या फिर आपकी गार्डनिंग में हो सकता है, बट कोई भी स्किल आप जो हो डेवलप करने की यहाँ पर इन द मंथ ऑफ नवंबर कोशिश करो, कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। दैट इज़ समथिंग विच आई सी। और ये कोई न्यू एज टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पुरानी चीज़ है, कोई जो आपके में भी ग्रैंड पेरेंट्स करते आए हों और वो चीज़ सीखना आपने भी, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राहु रिलेटेड चीज़ नहीं है, न्यू चीज़ नहीं है। ये कोई पुरानी चीज़ आप यहाँ पर लर्न करते हुए नज़र आ रहे हो इस मंथ। कोई न्यू हॉबी डेवलप करो जो कि पुरानी स्किल है, जो आपके पुराने मतलब आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। And I feel that yes, there is this travel and you would want to know about different aspects of your life, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी तक सिर्फ आपको ये पता हो कि कैसे पढ़ाई करी जाती है, कैसे ये वाला काम करा जाता है, कैसे इस कंप्यूटर या आईपैड को यूज़ करता है, कैसे इस टेक्नोलॉजी से ये काम करता है। नो, यू आर गोइंग बैक टू योर रूट्स, यू आर बीइंग क्यूरियस अबाउट समथिंग, अबाउट नेचर, या फिर जो भी आपके आपके पूर्वज करते थे वो कामों में आप इंटरेस्ट लो। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, उसके बारे में यहाँ कोई नॉलेज गेन करो। सो दैट इज़ समथिंग विच आई सी। ओवरऑल ये यहाँ पर जो है एनर्जी है। सो अगर आपकी जो है आपकी एनर्जी की बात करें, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी क्या एनर्जी है इस मंथ में, नवंबर के मंथ में 2021, पाइल नंबर 2 की क्या एनर्जी है। All right, so we have Page of Cups here and the Empress. Again, in the Empress card we have the World here. We have the World. There is this travel, of course. Your intuitive power is very strong. And यहाँ पर Page of Cups, again we have Ocean. So एक foreign distant land भी हो सकता है ये आप में से काफ़ी लोगों के लिए। कहीं आप अगर foreign distant land जाना चाहते थे, so in this month of November you can go. एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, पेज इज़ अ वेरी स्वीट इनोसेंट नोविस एनर्जी। इट्स अ वेरी स्वीट एंड इनोसेंट नोविस एनर्जी विच वॉन्ट्स टू लर्न मोर, हु इज़ वेरी क्यूरियस। सेम थिंग जैसे बच्चे हैं, बच्चों का अगर हमें एक प्लानट देखना हो कि बच्चे किससे रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे ओल्ड या फिर एक मेच्योर पर्सन जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। जो मर्करी है इट रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन। यहाँ पर आप एक चाइल्ड लाइक नेचर लेकर आ रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। यू आर बीइंग
बीइंग क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, अच्छा ये ऐसे है, ओके ये वैसे है। तो नॉलेज गेन करना, बीइंग क्यूरियस, बोर ना होना, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो उस सिचुएशन में भी खुश रहना। आई ऑल्सो फील दैट यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू योर हेयर स्टाइल्स। अपने हेयर स्टाइल को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा जो हो पर्टिकुलर हो जाओ, एनल हो जाओ अपने हेयर स्टाइल्स को लेकर, एंड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन योर हेयर स्टाइल। ये आप उस चीज़ को आप सीखो, दैट कैन हैपन हेयर। एंड यहाँ पर जो एम्प्रेस कार्ड है, इट इज़ अगेन शोइंग दैट यू नो यू आर इन अ मूड और यू आर इन द इमोशन वेयर यू वांट टू डू थिंग्स। जो करना है मैंने अभी करना है एंड मैं रुक नहीं सकता। जैसे बच्चा वो जिद पकड़ ले तो फिर बड़ा मुश्किल है एक पेरेंट को उसकी जिद छुड़ाना। तो यहाँ पर भी जो है एम्प्रेस इज सेइंग दैट यू नो व्हाट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, आई एम वेरी मोटिवेटेड फॉर दैट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट, लेट्स डू इट। ये एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर जो है आप काफ़ी एक ऐसी एनर्जी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं द मंथ ऑफ नवंबर, पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी लेजीनेस, लथार्जी, आलस नहीं आएगा। आलस आएगा ही नहीं। यू वट एवर यू वुड वॉन्ट टू डू यू विल डू इट। आप वो चीज़ कर लोगे और उस चीज़ को करने में बिलीव रखोगे। यहाँ पर जो है आपके लिए एक ओरेकल डेक से ओरेकल कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है पाइल नंबर 2 की एनर्जी इन द मंथ ऑफ नवंबर क्या है? ऑल राइट, सो वी हैव वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट, रिलैक्स। तो एज आई टोल्ड यू, यू वॉन्ट टू ब्रेक फ्रॉम योर बिजी लाइफ, you want to just go in a semi-urban or a rural area and you want to rest, relax, rejuvenate। तो वो जो चीज़ है वो आप जीना चाहते हो। कहीं ना कहीं काफ़ी हेक्टिक हो गए थे आपके कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वीक्स, सो यू वांट टू जस्ट रिलैक्स, चिल, सिट बैक एंड अगेन बी विद द नेचर हियर, बी विद द नेचर। अगेन वी हैव द वाटर here as well, we have the water and we have the earth, so again grounded महसूस आप करना चाहते हो थोड़ा, you want to be near nature। फास्ट लाइफ जो है उससे थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो, फास्ट लाइफ, टेक्नोलॉजी, उससे ब्रेक लेना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप जो हो नेचर के पास ही रहना पसंद करोगे। एक सेमी अर्बन रूरल एरिया में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो ये चीज़ आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए तो एनर्जी में, नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल बट ओवरऑल आई वुड से कि यहाँ पर आई वॉन्ट टू बी नियर नेचर, आई वॉन्ट टू रेस्ट, रिजुविनेट, रिलैक्स। ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए जो है यहाँ पर। व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, एजुकेशन, ये जो नवंबर का मंथ है ये कैसा है? Alright, so we have the sun card, okay, emperor के बिल्कुल नीचे मैंने रखा है, and we have the 7 of wands here. Alright, I mean the sun card is what? Sun is what? Sun is our father, authority, it's our bosses, it's the government and it's the king, and king lives in a kingdom, so यहाँ पर सबसे बड़ा kingdom कौन सा? It's the government now. So यहाँ पर आपके authorities, आपके bosses, आपकी लाइफ में जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो आपके मेंटोर ही क्यों ना हो या फिर आपके फादर ही क्यों ना हो, समहाउ आपकी फेवर में होंगे यहाँ पर, बिकॉज ये डायरेक्टली नीचे है एम्परर कार्ड के। ऑफ कोर्स ही समहाउ वो ट्राई टू से कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट अगेन जो ओवरऑल एनर्जी है, यू वांट टू टेक डिसीजंस ऑन योर ओन, यू डोंट वांट टू टेक एडवाइस एज वेल। आप अपने मन की करना चाहते हो। यहाँ पर अगर हम करियर की भी बात करें, ये जो 7 of wands है, इट इज़ सेइंग स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। एज आई टोल्ड यू, योर मेंटोर्स and your father may try to say you should do this, you should do that, but you are taking your own decisions। और यहाँ पर भी जो है 7 of wands में वही चीज़ आ रही है कि यहाँ पर आपको अपने बिलीव्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए। और जो भी यहाँ पर जो है लोग पावर में हैं, दे मे ट्राई टू कंट्रोल यू, बट ओवरऑल अगर हम देखें फिर भी एनर्जी स्टिल चीज़ें जो है आपकी फेवर में होंगी यहाँ पर। इट्स जस्ट नॉट अबाउट गिविंग यू पॉजिटिव रीडिंग, बट वट एवर आई एम फीलिंग एंड वट एवर आई एम सीइंग आई एम टेलिंग यू, because we also have the world card which is about knowledge as well। somehow यहाँ पर जो भी आपके mentors है, bosses है अगर हम बात करें,
दे मे चैलेंज यू, दे मे अपोज यू, बट इतना कोई ड्रास्टिक यहाँ पर स्टेप वो आपके अगेंस्ट लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। वट एवर स्टेप यू आर टेकिंग पाइल नंबर 2, वो उसको अपोज ज़रूर कर सकते हैं, बट स्टिल वो मान जाएंगे। इसमें कोई वो लड़ाई झगड़ा होता हुआ यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। ओपिनियंस मैटर ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई हो जाती है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं पर लड़ाई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। डिसएग्रीमेंट्स हैं, ऑल राइट फाइन, बिकॉज दिस इज़ नॉट ला ला लैंड, इट्स रियल लाइफ। तो ऑफ कोर्स हर पर्सन की एक डिफरेंट ओपिनियन है, वो अपने उनका पास्ट कुछ और है, इस वजह से उनका जो अभी प्रेजेंट में वो जो डिसीजन लेते हैं वो डिफरेंट है आपसे। सो यहाँ पर जो है वट एवर द सिचुएशन इज़ इन योर करियर, इन योर एजुकेशन, यहाँ पर स्टिल आपकी अथॉरिटीज़ आपका फेवर लेंगे, यहाँ पर फेवर करेंगे, और यहाँ पर जो है आपसे डिफरेंट ओपिनियंस हो उनकी, बट स्टिल दे नो कि वो आप जो हो आप अपनी चीज़ पर खड़े रहोगे एंड यू आर गोना टेक अ स्टैंड हियर इन योर करियर। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग विल्ड नज़र आ रहे हो, आपकी विल पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एंड समहाउ अगर आप एक ऐसी कन्फ्यूजन में थे कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, मुझे कौन सा काम शुरू करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये जो सन कार्ड है ये क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ये कार्ड, सन कार्ड, इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ, बिकॉज अगर कहीं डार्कनेस है वहाँ पर लाइट ही नहीं है, तभी डार्कनेस है। जैसे ही सन आता है डार्कनेस में, वो वहाँ उस डार्कनेस को क्या करता है, हटा देता है, अंधेरे की जगह उजाला लेकर आता है, जिससे हमें क्लियर चीज़ें नजर आती है। सो दिस सन इज ऑल्सो गिविंग यू क्लैरिटी अबाउट योर करियर। कन्फ्यूजन्स यहाँ पर दूर हो रही है और आपको स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ अपने लिए पर। यू हैव टू टेक द स्टैंड। There will be people who will say that you should do this, you should do that, but you are taking charge, you are taking control in your life in terms of your career. यहाँ पर जो है आपके लिए oracle message क्या है for your career, pile number 2 के career के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? All right, so we have house here. ओके, यहाँ पर जो है अगेन इट्स अबाउट फादर, मेंटोर। कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में अथॉरिटी है, दैट अथॉरिटी इज़ पावरफुल। दे विल काइंड ऑफ विल से समथिंग टू यू अबाउट योर डिसीजंस इन लाइफ। समहाउ जो भी ये पर्सन जो है आपको सलाह देते हैं, उनकी सलाह आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है। समहाउ वो फाउंडेशन है आपका, उन्होंने आपकी फाउंडेशन बिल्ड करी है। सो उनकी भी जो ओपिनियन है आपकी लाइफ में मैटर करती है। पर अगेन यहाँ पर जो हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपना चार्ज ले रहे हो, बट येस थोड़ी जो ओपिनियंस हैं वो डिफ़र यहाँ पर कर रही है, स्पेशली फादर और आपकी, या फिर मेंटोर और आपकी। बॉसेस जो है स्टिल वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये जो फादर और मेंटोर का जो रिलेशन है, they will have a different opinion and you have to take a stand. तो ये चीज़ तो है। Then if we have to say something about the about your personal life, romantic love relationship या family relationship, ये कैसे रहने वाले हैं इस नवंबर के मंथ में? All right, so we have the card 5 of Cups, then we have 9 of Swords. All right, I really feel this now. फादर एंड मेंटोर से रिलेटेड चीज़, आई रियली फील दिस कि कहीं ना कहीं आप अपने फादर या फादरली फिगर या फिर अपने मेंटोर की नहीं मान रहे हो, तो समहाउ यू आर गोइंग थ्रू स्लीपलेस नाइट, समहाउ यू आर नॉट फीलिंग वेल अबाउट इट, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही उससे। और 5 ऑफ कप शो करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, जो चीज़ खराब हो गई, गिर गई, या जो चीज़ आपके पास है नहीं, उसको जो है आप उसी के बारे में सोची जा रहे हो। नेगेटिव इमोशन यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है। वो पर्सन मेरे पास नहीं है, उस पर्सन ने मुझे ऐसा कह दिया है। कई बार हमारे लव्ड वंस हमें कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे हमें पिंच इन द हार्ट हो जाता है और हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में उदास होते हैं, पूरी रात हम सो नहीं पाए क्योंकि हम उसी चीज़ के बारे में, उसी सिचुएशन के बारे में, उसी बात के बारे में सोचे जा रहे थे। वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है।
कहीं ना कहीं जो रिलेशन है मेंटोर फादर के साथ, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि ये तो अब पर्सनल लाइफ में भी आ गया है, नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल बट पर्सनल लाइफ में भी आ गया. सो बी केयरफुल अबाउट योर opinions of your father or fatherly figure or mentor. Be careful. और यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करना, बिकॉज रिजेक्ट जैसे ही करा तो दूसरे पर्सन को एकदम पिंच होता है, बुरा लगता है. हाँ जी कह दो, करो, हाँ जी कह दो, सुनो सबकी, करो अपनी. एकदम से रिजेक्ट नहीं करना है यहाँ पर. योर एनर्जीज अबाउट कि लेट्स डू इट, अभी करते हैं, चलो अभी करते हैं. And somehow you want a break, so you are going away from your whatever place you are living right now and you want to do it, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है. और यहाँ पर जो है रिजेक्ट नहीं करो उनका आइडिया, सुन लो, देख लो, रिजेक्ट फेस पे, मुंह पे ही मत करो, वो फिर जो है गलत हो जाएगा. यहाँ पर जो है लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं. थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पर हैं, थोड़ा ग्लूमी यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं जो ये ग्लूमीनेस है या ये जो सिचुएशन है, इट इज़ अबाउट कि कहीं ना कहीं आप उन पे ध्यान नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रॉन्ग हो गया है. क्योंकि ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड इज़ द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ द एयर साइन कम्युनिकेशन, और कप्स इज़ द एनर्जी ऑफ वाटर विच इज़ अबाउट इमोशंस. तो इमोशनल हर्ट यहाँ नज़र आ रही है. समहाउ किसी ने कुछ कह दिया, आपने भी शायद दूसरे पर्सन को ऐसा कुछ कहा है कि वो भी थोड़ा डाउन फील करे. तो लव रिलेशन भी आपको केयरफुल रहना यहाँ पर ज़रूर पड़ेगा. अपना कम्युनिकेशन राइट रखो, रिजेक्ट किसी को मत करो, हाँ जी का पाठ पक्का करो. कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में इशू है यहाँ पर. आपके लिए यहाँ पर मैसेज क्या है फॉर योर लव रिलेशनशिप? Guidance. All right, so we have giving. I welcome the idea of give and take in my relationships, and I eagerly practice the give part. By giving freely, I discover just how fun really is. Giving my time, care and attention to someone else actually gives me good feelings, which makes me want to give even more. Wait a sec. Does this selflessness make me look selfish? Be honest. So it's about giving, it's not about taking, it's about giving. यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट जो है ये आपने किसी को दिया है, एंड कहीं ना कहीं वो फिर से वापस आए, बिकॉज वट एवर यू गिव इट कम्स बैक. Whatever you give, it comes back. So वो जो जिसने आइडिया दिया है आपको सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करना है. और यहाँ पर वक्त, अपना टाइम और जो आपको जो केयर है दूसरे पर्सन को ज़रूर देनी चाहिए. दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वक्त देना, टाइम देना, अपने ऊपर ही बिजी मत रहना. somehow of course ये जो अपने लिए भी सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट टाइम ज़रूर निकालना अपने लव्ड वंस के लिए. दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. यहाँ पर जो है दीज आर द मैसेजेस फॉर यू विच आर कमिंग फ्रॉम टेरो. एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस मंथ की आपके लिए, पाइल नंबर 2, देन आई सी दैट यू आर ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस. It can be a foreign distant place as well, or you are traveling to a semi-urban or a rural area. You want to take a break from this busy life of yours. यहाँ पर टेक्नोलॉजी से भी जो हो आप ब्रेक ले सकते हो. यहाँ पर जो हो आप कहीं ना कहीं you just want to be near nature. नेचर रिट्रीट पर आप जा सकते हो. थोड़ा रेस्ट और रीजुबिनेशन का जो हो आप टाइम निकालो इस नवंबर के मंथ में. यू वांट टू रिलैक्स एंड यू वांट टू रीजुबिनेट. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, दैट आई वांट टू डू दिस एंड आई डू नॉट वांट टू डू दैट. सो यू आर बीइंग क्लियर हियर. अगेन वी हैव ट्रैवल, योर इंट्यूशन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, उसका यूज़ करो. यहाँ पर पेज ऑफ कप्स अगेन शो कर रहा है दैट यू आर गोना बी क्वाइट इंटरेस्टेड इन टू योर हेयर स्टाइल. और यहाँ पर जो है अगेन एक नोविस एनर्जी है. यहाँ पर अगेन क्यूरियस एनर्जी है. तो आप हर चीज़ को लेकर यहाँ पर क्यूरियस भी नज़र आ रहे हो. एंड आई अगेन फील व्हेन इट कम्स टू करियर, आपकी लाइफ में जो है आपके बॉसेस आपको जो है आपके फेवर में हो सकते हैं, इतना ज़्यादा अपोज ना करें. बट व्हेन इट कम्स टू फादर और फादरली फिगर, मेंटोर,
पर आपको जो है उनकी ओपिनियंस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने करियर में, दैट आई वांट टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, कहीं ना कहीं फादर के साथ रिलेशनशिप या फादरली फिगर जो पर्सन है आपकी लाइफ में, उनके साथ जो रिलेशन है, स्पेशली कम्युनिकेशन, उसकी वजह से निराशा आना, नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना कि वो पर्सन ऐसा है, मैं ठीक हूँ, वो पर्सन ऐसा है। दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद हमें क्या होता है, उसकी अच्छाई बुराई दोनों दिखने लग जाती है। और 5 ऑफ कप शो करे कि आप बुराई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में, अपने फैमिली लव रिलेशनशिप में भी, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी। सो उसको कंट्रोल यहाँ पर करने की ज़रूरत है। गिविंग, ये जो आपका कार्ड आया, मैसेज आया है आपके लिए, इट्स अबाउट गिविंग, इट्स नॉट अबाउट रिसीविंग। यहाँ पर प्यार जितना दोगे उतना आप रिसीव भी करोगे। वट एवर यू गिव इट कम्स बैक। तो यहाँ पर जो है अच्छा उनके साथ वक्त बिताना है, अच्छा कम्युनिकेट करना है और उनको जो है लव्ड महसूस कराना है। बिकॉज इवन इफ वी लव समवन, हम कई बार उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसको एक्सप्रेस करने की यहाँ पर गाइडेंस है। ऑल राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, दीज आर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello pile number 3, so this is your reading. You chose this pile because your moon is in the air sign, Vayu signs like Gemini, Libra or Aquarius, or you choose this pile because आप कहीं ना कहीं Gemini, Libra या फिर जो है आपके 11th हाउस और 11th साइन Aquarius, उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, और या फिर आपने ये गाइडेंस इसलिए चूज़ करा है बिकॉज यू जस्ट फेल्ट the connection, you just got attracted to this card. So first of all हम देखेंगे आपकी overall energy क्या है इस मंथ की, then we'll see आपकी energy क्या है इस मंथ की, then आपके करियर और आपके जो लव रिलेशनशिप्स है उसके लिए हम जो हैं यहाँ पर टेरो निकालेंगे और ओरेकल कार्ड निकालेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यहाँ पर जो है एनर्जी है आपके मंथ की। सो वी हैव द रेन कार्ड, प्योरिफिकेशन। सो ऑफकोर्स रेन जो है प्योरीफाई करती है, द वर्क ऑफ रेन इज़ टू प्योरीफाई, इट्स द यू नो कि हमारे जो एयर पार्टिकल्स में डस्ट है, पोल्यूशन है, उसको वो बिठा देती है बारिश, और हमें क्लियर नज़र आता है सब कुछ। सो इट्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन दिस मंथ ऑफ नवंबर, पाइल नंबर 3, आप काफ़ी ज़्यादा जो हो प्योरिटी पर ध्यान दे रहे हो, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि पर ध्यान दे रहे हो। समहाउ इट्स अबाउट के यू आर यू नो इन अ सिचुएशन और you just feel that you know what, I want to move on in my life, but first I have to forget the past, because जो मन है उसके अंदर से पास्ट की जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पास्ट के जो रिलेशन है जो आपको दुख देकर गए हैं, उनको जो है आपको माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो हमने वो कचरा भरा होता है हमारे मन के अंदर, वो हमें हैवी फील करा रहा होता है, और हमारा मन, हमारा कहीं ना कहीं माइंड जो है उस चीज़ से भरा हुआ है। तो हम न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू चीज़ें अपने माइंड में, अपने मन में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ओवरलोड हुआ है। तो यहाँ पर पहले मन को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल्सो ऑफ कोर्स अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट, कि अपने आप को जो है, अपने घर को भी जो है एक डेकोरेट करना, या फिर एक न्यू चीज़ें अपने घर में लेकर आना, कोई रीअरेंज करना। एंड ऑफ कोर्स दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर, सो ऑफ कोर्स दिवाली में हम क्या करते हैं कि हम सारा जो घर का सामान जो है उसको हम पहले देखते हैं कि क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्या नहीं यूज़ करते। जो यूज़ करते हैं उसको हम रख लेते हैं, जो नहीं यूज़ हो रहा है इतने टाइम से तो हम उसको किसी और को दे देते हैं जिसको ज़रूरत है। सो इट्स ऑल्सो अबाउट कि हमने अपने घर से, हमने अपने जो है कमरे से इंडिविजुअल लेवल पर जो है चीज़ें निकाली, चीज़ें जो है किसी को दे दी, क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं करते। हम जिस चीज़ को नहीं यूज़ करते हैं, इट्स बेटर टू गिव इट अवे टू समवन हु नीड्स इट, राइट। सो यहाँ पर अगेन इट्स अबाउट प्योरिफिकेशन, यू आर प्योरीफाइंग योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड यहाँ पर जो है अगेन हम मेन आई शुड से आर्काना, मेजर आर्काना जो है उससे यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं ओवरऑल क्या है। ओके, वी हैव द सन कार्ड हियर, सूर्य, एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्मा। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्मा, सन, सूर्य। सो ऑफ कोर्स इफ़ यू नो जो
धार्मा है, हु इज द लॉर्ड ऑफ धार्मा? इट्स यामा. यामा का फादर कौन है? इट्स सूर्य. Somehow I really feel again dharma, yama always shouted dharma dharma dharma. Yama is of course जो कहते हैं कि दूसरे जो सोल्स हैं, जो बॉडी में सोल्स है हमारी, उसको लेने आता है यामा. और यामा को हर चीज़ याद रहती है कि इस सोल का ये वाला टाइम पीरियड है जब इसको लेकर आने इस शरीर से हमने. यामा को ये पता होता है कि किसके कितने ब्रेथ हैं इस बॉडी में. इस डीटी का ये काम है. और सारा जो इन्फॉर्मेशन है उस सोल के बारे में, सोल के कर्मा के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन यामा को पता होती है. सो यहाँ पर जो है शो करता है, जैसे ही मैंने पहले भी यहाँ पर प्योरिफिकेशन में ये चीज़ कही, समहाउ इट इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट. क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत पकड़ के रखते हो कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा था, उस पर्सन ने मुझे वैसा कहा था. समहाउ बहुत ज़्यादा पकड़ के उस बात को रखते हो, उन बातों को रखते हो जो कि ठीक नहीं है. सन जो है, सन का काम क्या है? इट्स टू बर्न, टू प्योरीफाई, बिकॉज सन इज अ सात्विक ग्रह. सो इट्स वर्क इज टू प्योरीफाई. सन के बहुत पास जाओगे तो सन इज गोना बर्न यू. इफ यू आर अवे फ्रॉम द सन, सन इज गोना गिव यू लाइट. एंड आई रियली फील दैट दिस सन इज अबाउट बर्निंग. इट्स अबाउट बर्निंग ऑफ karma. आई रियली फील पाइल नंबर 3, इस मंथ, नवंबर के मंथ में जो हो, आप अपने पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको बर्न करोगे, उससे भुला दोगे, उस अपने माइंड को प्योरीफाई करोगे. प्लस आई ऑल्सो फील कि नवंबर मंथ इज़ गोइंग टू बी क्वाइट कार्मिक फॉर यू. आई मीन कार्मा जो है पे ऑफ करना बहुत अच्छी बात है. कर्मा को पे ऑफ करना बहुत बहुत अच्छी बात है, ताकि हम इस लाइफ और डेथ की साइकिल से निकलें. So I feel that there are going to be situation जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. There will be these situation, but that does not mean to be negative. You should be thankful कि ये person जो है मेरी लाइफ में आए, चाहे मुझे दुख दे के गए, पर मेरे जो कार्मिक कनेक्शंस है वो हल्के होते जा रहे हैं. उसका जो घड़ा भरा हुआ था वो कम 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 होता जा रहा है. बट येस, दिस मंथ यू विल डील विद ऑब्स्टिकल्स, कॉम्पिटिशन, हर्डल्स. आई फील कि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर ऐसी कोई कॉम्पिटिशन है, कोई जो है यहाँ पर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो. सो यू आर डीलिंग विद हर्डल्स, कॉम्पिटिशन दिस मंथ. बट फिर भी जो सन है, इट्स अ सात्विक ग्रह, तो आप जीत कर निकल रहे हो. ये चीज़ भी है यहाँ पर. तो ये सिचुएशन है. एंड आई अगेन फील कि it's also about clarity about certain things in your life. somehow आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, बिकॉज सन गिव्स लाइट एज वेल. एंड लाइट से क्या होता है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ डार्कनेस है, वहाँ क्लैरिटी आ जाती है. somehow कई चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी. और रेन का भी तो यही काम है कि सारी डस्ट, सारा पोल्यूशन जो है रेन एक बार बिठा देती है और बिल्कुल क्लियर दिखता है हमें कि क्या है क्या नहीं है. तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि क्लैरिटी भी यहाँ आपको काफ़ी आएगी. एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ रिलेटेड टू योगा एज वेल, दिस इज़ रिलेटेड टू ब्रेथ एज वेल, बिकॉज प्योरिफिकेशन की बात है. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है. और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट. तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि बॉडी की प्योरिफिकेशन, बॉडी की प्योरिफिकेशन, फिजिकल बॉडी की प्योरिफिकेशन. इट्स अबाउट कि आप अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान दे रहे हो. ब्रेथ रिलेटेड एक्सरसाइज आप यहाँ पर कर सकते हो, कपाल भारती, अलोम विलोम, बेसिकली योगा आप यहाँ पर कर सकते हो. बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके लिए यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी क्या है इस मंथ. यहाँ पर जो पाइल नंबर 3 है उनकी क्या एनर्जी है इस मंथ. ऑल राइट, सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट, एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स. ओके, ऑल राइट. आई रियली फील दैट दिस इज अ बैलेंस. यहाँ पर भी ये पर्सन बैलेंस करके खड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी एक वो जो प्रैक्टिकलिटी और जो इमोशनल सेल्फ है उसका यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रहा है. आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रही है. somehow this the dharma card, I also feel that you are becoming more spiritual here. somehow यहाँ पर जो हो कर्मा की जो कर्मा फिलॉसफी है कि जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा.
जो दोगे वो आप पाओगे, whatever you give to the universe it is gonna come back to you। उस चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा बिलीव करने लगोगे, कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगोगे, धार्मा में बिलीव करने लगोगे, और कहीं ना कहीं यू आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर। साथ ही साथ यू आर ऑल्सो इमोशनली इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स नोज दैट लव इज कॉम्प्लिकेटेड, सो एक्स्ट्रा कहीं पंगे लेता ही नहीं किंग ऑफ कप्स। सो आई फील दैट यू आर बीइंग इमोशनली रियली वेरी वाइज, तभी आप शायद इस महीने दूसरे लोगों को माफ़ भी कर दोगे, अपना मन, अपना जो माइंड है वो प्योरीफाई कर दोगे, क्योंकि आपने उस पर्सन को जो है फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया। यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश नाउ। स्पेशली जो सन है, सूर्योदय हम कहते हैं, राइट, और हम सूर्योदय के टाइम कहते हैं कि हमें जो है योगा करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। इट्स सन रिप्रेजेंट्स योर इनिशिएशन एज वेल, न्यू बिगिनिंग एज वेल। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए नज़र आ रही है। पाइल नंबर 3, यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, एंड यहाँ पर मन से भी आपके क्लैरिटी है कहीं ना कहीं, अगेन बिकॉज सन इज देयर, सो क्लैरिटी इज देयर। मन में, माइंड में क्लैरिटी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज माइंड में मन क्लियर है, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। तो ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स शोज कम्युनिकेशन, इट शोज कम्युनिकेशन, सो यू आर वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन, वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन, एंड बिकॉज इट्स अ किंग, सो किंग वैसे ही क्लियर है यहाँ पर कि क्या चीज़ मुझे किसी को बतानी चाहिए और क्या नहीं बतानी चाहिए, कितनी बतानी चाहिए और कितनी नहीं बतानी चाहिए। यू आर गोना बी वेरी क्लियर, योर एनर्जी इज़ वेरी क्लियर, योर कम्युनिकेशन इज़ गोना बी वेरी क्लियर। आपके इस मंथ में इतना मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लोग कह सकते हैं दैट यू आर बीइंग स्टैंड ऑफिश अ बिट, पोकर फेस रखा हुआ है आपने, या फिर आप इतना ज़्यादा जो हो इंडल्ज नहीं हो रहे हो अपने कुलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। ओवर इंडल्जेंस यहाँ पर इतना नहीं नज़र आ रहा है, एक प्रैक्टिकल आप हो गए हो, बैलेंस्ड सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पर, बैलेंस्ड। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई सी। आपके लिए जो है यहाँ पर एक और ओरेकल कार्ड, ओरेकल डेक से एक कार्ड निकालते हैं फॉर योर एनर्जी, पाइल नंबर 3 की एनर्जी। सो वी हैव दी take action with passion. It's about courage, it's about valiant courage. If I'm so sorry if I'm pronouncing it wrong, but yeah, it's about taking action. You are being courageous here. You are like, I want to do this, so I have to do this, because you are very clear, you are very clear, and यहाँ पर जो है whatever you want to do, you are doing it irrespective of कि वो person क्या कह रहा है, उस पर्सन की क्या ओपिनियन है। सी, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स नेवर रियली बॉदर अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन, ही इज जस्ट डूइंग हिज वर्क। जो करना है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने वो करता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो दूसरों का इतना नहीं सोचता है। यहाँ पर भी जो है आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट। और यहाँ अगेन करेज, यू आर बीइंग करेजियस हेयर कि मुझे ये करना है तो मैंने करना है। विल पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, दूसरों का इतना ज़्यादा जो हो आप परवाह करते हुए नहीं नज़र आ रहे। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर डूइंग इट irrespective of what the other person is saying. So of course you can face opposition, of course this is real life, you can face opposition, but वो opposition जो है, opposing opinions जो है, वो आपको रोक नहीं रही है action लेने से। You are still taking action. काफ़ी action oriented energy और काफ़ी समझदार energy आपकी इस नवंबर मंथ में महसूस हो रही है। और अगेन यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू, और आप इमोशंस में भी जो इंटेलिजेंट वे से डील कर रहे हो, एक टेक्टफुल वे से डील कर रहे हो। एंड लेट मी जस्ट पुल सम कार्ड्स फॉर योर करियर। पाइल नंबर 3 का करियर कैसा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑलराइट, सो वी हैव रिलीज, as I'm talking about, I mean, as I've told you with the Wheel of Fortune and the Sun card and the purification, you have to release here, you have to let go here. Release is like the death card in this deck, so it's the 8th house or the sign of Scorpio जो ये release show करे। and then we have 4 of Pentacles. so यहाँ पर आप काफ़ी
व्हेन इट कम्स टू के मनी कैसे मैनेज करें, बजटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हो। यू नो द बजटिंग, आपको पता है कि कहाँ मनी इन्वेस्ट करना है, कहाँ मनी नहीं इन्वेस्ट करना है। उन चीज़ों को लेकर जो हो, रिसोर्सेज को लेकर, टेंजिबल एस्पेक्ट जो है आपकी लाइफ है उसको लेकर आप काफ़ी यहाँ पर सही डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 4 ऑफ पेनिकल्स में, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस, स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, seeing things as black or white, being charitable. As I was telling you that you are being very क्लियर व्हाट यू वांट टू डू, इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर नज़र आ रही है और टैक्टफुल वे से आप डील कर रहे हो सिचुएशन से। और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है दैट एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम एंड और इमोशंस। कप्स इज इमोशंस, कप्स इज आर our love relationship, it represents that too, it's our ability to love। तो यहाँ पर जो है अगेन आप जो हो काफ़ी ज़्यादा एक एक्सट्रीम में जाकर देख रहे हो कि मुझे कितना समय, कितना मनी, कितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी मुझे कितनी करनी चाहिए किसी पर्सन में, उसको लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हो। एंड रिलीज कार्ड इज सेइंग एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशंस or people that hold you back, spiritual transformation. Yes, you are transforming yourself here. You are transforming yourself. You are following the dharmic path here, dharma here. और यहाँ पर I also feel pile number 3 that some of you may even leave your job, some of you may even start a business. बिजनेस को लेकर इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और यू वांट टू जस्ट गो फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी, वन जॉब टू अदर जॉब, तो वो चेंज भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम सम वर्क, फ्रॉम सम कंपनी, बिकॉज यू डोंट want to work there anymore। तो एक तरह से मैं यही कहूँगी कि इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आपके स्पेशली करियर में आ रही है, जहाँ पर आप करियर चेंज कर रहे हो, जॉब से बिजनेस में आ रहे हो, बिजनेस से जॉब में आ रहे हो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश, और उसको लेकर इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो। यहाँ पर भी करेज, यहाँ पर भी मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट है, कहीं ना कहीं तो आप यहाँ पर पहुँचते हुए ही नज़र आ रहे हो, कोई तो मंजिल है जो आपको पता है मुझे यहाँ पहुँचना है। सो यू आर क्लियर अगेन इन योर माइंड दैट आई वांट टू रीच दैट गोल। उस गोल तक रीच करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो स्टेप्स आप नवंबर से शुरू कर दो लेना। सो दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी। यहाँ पर आपके लिए एक और हम कार्ड निकालते हैं फ्रॉम द स्किपर्स डेक फॉर करियर। पाइल नंबर 3 का करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, वी हैव ग्रेट फॉर्चून, अगेन मनी एंड फॉर्चून, आई शुड से लक इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यू आर बीइंग लकी दिस मंथ। पाइल नंबर 3, आपके पास जो है मनी भी आ रहा है, अगेन यू आर मैनेजिंग, यू आर बजटिंग योर मनी वेल, बट अगेन दिस ग्रेट फॉर्चून इज डेफिनेटली शोइंग कि आपके पास जो कहीं ना कहीं किधर से मनी तो आ रहा है, यू आर गेटिंग द मनी, और लक भी आपके साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। And sun, Surya, as I've told you, Surya, sun is a sign of positivity. It's a sign of positivity. It's the yes card as well. So कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन मनी आपके पास आ रहा है, मॉनेटरी गेन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लक फॉर्चून यहाँ पर आपके करियर में नज़र आ रहा है। When it comes to your personal life, family, love relationship और romantic relationship, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है for pile number 3? Okay, so we have 6 of cups and we have the devil card. All right, interesting. So जो 6 of cups it is definitely showing pile number 3 that कोई पास्ट का पर्सन जो है आपके पास आ रहा है, कोई पास्ट का पर्सन, कोई एक फ्रेंडशिप, कोई एक ऐसा पर्सन जो मे बी आपके साथ स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, बट पास्ट का कोई पर्सन आपको जो है इस नवंबर के मंथ में कांटेक्ट कर सकता है। एंड आई ऑल्सो फील अगर ये रोमांटिक रिलेशन है, जैसा यहाँ पर रेन एंड प्योरिफिकेशन, आई टोल्ड यू टू लेट देम गो। इट्स अबाउट कि उस पर्सन ने मुझे ये कहा था, मुझे बुरा लगा था, तो उस पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, और आप बढ़ रहे हो आगे। एंड आई फील दैट
दैट पर्सन, रोमांटिक पार्टनर जो आपके एक्स थे, शायद वो वापस आए यहाँ पर। वी ऑल्सो हैव द डेविल कार्ड, सो डेविल इज अगेन अ नेगेटिव कार्ड। सो वो पर्सन जो है पास्ट के, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, रोमांटिक रिलेशनशिप था, वो पर्सन आप आपके प्रेजेंट में आ सकते हैं। एंड अगेन बिकॉज इट्स अ डेविल कार्ड, सो आई फील जो भी ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, अपने जो आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सो ओवर एम्बिशियस भी मैं कहूँगी, थोड़ा ओवर एम्बिशियस भी ये पर्सन है। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील दैट इफ़ यू weren't in any relationship before, then you can actually get in a relationship with someone जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिसको आप पहले से ही जानते हो, उस पर्सन के साथ आप यहाँ पर रिलेशनशिप में आ सकते हो। एंड जो भी रिलेशनशिप है, पुराना या नया, जो भी आप बना रहे हो रिलेशनशिप, दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम योर कास्ट, नॉट फ्रॉम योर कम्युनिटी, बिकॉज द डेविल इज राहु। राहु इज आउटकास्ट, राहु इज फॉरेन, राहु इज अ नेचुरल मलेफिक। सो शो करता है कि यहाँ पर इट्स अबाउट के आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स हियर। आई वॉन्ट टू अगेन पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। Plus this is a general reading, but again the cards are showing that this person will try to control you, and you may not like it because now you're very aware here, you're being aware, you have the clarity what you want and what you do not want, तो आपको ये पता लगने लगेगा that this person actually controls you. So not the best, I mean ये कार्ड शो कर रहा है कि केयरफुल रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, आई शुड से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयरफुल रहने की। इन फैमिली लव रिलेशनशिप आई हैव टू से देन यहाँ पर फैमिली के साथ भी थोड़े इश्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आप कम्युनिकेशन राइट करना चाहते हो, आपकी इंटेंशंस राइट है, बट समहाउ विद फैमिली, बिकॉज डेविल इज़ राहु, राहु इज स्मोक, धुंध होना, धुंध में हमें कुछ क्लियर नहीं दिखता है, स्टिल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली लव रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। इवन तो आपका कम्युनिकेशन राइट है, आपका इंटेंशन राइट है, स्टिल यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है नज़र आ रही है। समहाउ जो दूसरा पर्सन है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ ऐसा कम्युनिकेट करे जो आपके मन में कन्फ्यूजन लेकर आए, मिसकम्युनिकेशन हो और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाए। तो उस चीज़ पर भी जो है आपने यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पर जो है let me pull one more message for you for your love relationship for pile number 3. All right, so we have celebration. All right, this card is saying, when I come across people in happy, healthy relations, I give jealousy the finger and celebrate their joy. When I do so, I am rooting for the good guys, which means that I am a good guy. And that means all of us win. Who wants to celebrate? So again, this is about, I mean, celebration card is about that you're celebrating good health, happiness, अच्छे relations, आप उनको celebrate यहाँ पर अपनी personal life में करोगे in the month of November. Somehow जो भी आपके पास लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जिन लोगों की आपके साथ interactions हैं, आप फिर भी उनके साथ उनको you will appreciate them, you will try to celebrate, क्योंकि आप अपनी life से जो unwanted लोग थे या फिर वो टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक मेमोरीज जो थी उनको हटा रहे हो, और जो अच्छे मेमोरीज हैं, जो अच्छी मेमोरीज आपके पास बचे, आप उसको लेकर सेलिब्रेट कर रहे हो कि चलो अगर नेगेटिव थी वो चीज़ मैंने टाटा गुड बाय कर दिया, अब मेरे पास अच्छी मेमोरीज है, मैं उसको सेलिब्रेट करूँ। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू पाइल नंबर 3। ऑल राइट, सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन फॉर यू पाइल नंबर 3 एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello pile number 4, so this is your reading. You chose this pile because your moon is placed in the jealous signs like Cancer, Scorpio or Pisces, or you chose this pile because you are just connected to the sign of Cancer, or you feel connected to the sign of Scorpio or Pisces, or you chose this pile because you just felt like ये कार्ड, ये पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस मंथ की आपके लिए, देन वील सी आपकी एनर्जी क्या है इस मंथ के लिए, देन वील सी कि आपका करियर जो है वो कैसा रहेगा, देन वील सी आपका जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल जो ये एनर्जी है आपकी इस मंथ की, सो वी हैव स्प्रिंग. I'm not going to say this word because I know that I'm going to butcher the word here. It says rebirth.
सो यहाँ पर जो है इट्स अबाउट डेथ एंड रीबर्थ, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू, स्टार्टिंग अ फ्रेश, एंड वॉट एवर इट इज़, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस देगा। बिकॉज स्प्रिंग टाइम में हम क्या देखते हैं कि फूल पौधे उगने लग गए हैं, फ्लावर्स खिल चुके हैं, ब्लॉसम कर चुके हैं, सब बड़े सुंदर, सब बड़े कलरफुल नज़र आता है। तो यही चीज़ जो है, ये स्प्रिंग सीजन जो है, इट्स अबाउट के ब्लूम होना, कोई चीज़ फ्लरिश करना। ऐसा हो सकता है दिस मंथ, आई मीन द मंथ ऑफ नवंबर, इट ब्रिंग्स यू द बूम इन योर करियर, बूम इन योर लाइफ। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, उस चीज़ में आपको जो है अब नवंबर के मंथ में जाकर जो है आपको उसका कोई रिजल्ट मिला। एंड आई रियली फील जो भी ये रिजल्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी जो है एक बड़ा आउटपुट आपको मिल रहा है, एक बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है। अगर आप पे चेक की बात करें तो बड़ा अमाउंट का पे चेक आपको मिल रहा है। और जो भी बिजनेस, जॉब या जो भी आप काम कर रहे हो, इवन एजुकेशन में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है, कुछ ना कुछ फ्लरिश कर रहा है, आप फ्लरिश करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। द मंथ ऑफ नवंबर इज ब्रिंगिंग यू द स्प्रिंग हियर, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ वेल्थ, और या फिर आपके एजुकेशन में आपके बहुत अच्छा स्कोर आना, वो चीज़। बट आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, ऐसे ही नहीं हुआ है, ये आपने एफर्ट करा है, तो यहाँ पर आपको ये स्प्रिंग देखने को मिल रही है। एंड आई ऑल्सो फील दैट ऑफकोर्स सम ऑफ यू विल ऑल्सो चेंज समथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज रीबर्थ है, यानी पहले डेथ हुई थी फिर ही तो रीबर्थ हुआ ना। तो यहाँ पर पाइल नंबर 4, आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू आर गोना ट्रांसफॉर्म समथिंग इन योर लाइफ, समथिंग some experience may transform you in the month of November, will make you understand things in your life, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, लाइफ जो है नवंबर के मंथ में ईजी होनी शुरू हो जाएगी। एक नया साइकिल आपकी लाइफ में जो है नवंबर के मंथ में शुरू होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ और कार्ड्स भी निकालता है, शुड से मेजर आर्काना इस मंथ की वाइब्रेशन के लिए। सो वी हैव द डेथ कार्ड अगेन। इट्स एज आई टोल्ड यू, अभी जैसा मैंने कहा, पहले डेथ है तभी तो रीबर्थ हुआ है ना। सो आई मीन अगेन इट्स अबाउट डेथ एंड रीबर्थ। कोई नई चीज़ शुरू होनी, पुरानी ख़त्म होनी, नई शुरू होनी। ओके, देन वी हैव चंद्रा, मून। ऑल राइट, अगेन वी आर डूइंग दिस रीडिंग फॉर द वाटर साइन, एंड यहाँ पर वही तत्व आ गए हैं, वाटर तत्व, जल तत्व आ गए, विच इज़ अबाउट माइंड, इमोशंस, नरिशमेंट, फूड, होमलैंड, योर कंफर्ट जोन, पीस ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को 4th हाउस या साइन ऑफ कैंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। सम आई फील सम ऑफ यू विल इवन रीलोकेट, बिकॉज द मून इज रूलिंग द 4th हाउस ऑफ होम, रेजिडेंस, एंड इट्स अबाउट डेथ एंड रीबर्थ, चेंज आना, ट्रांसफॉर्मेशन आना। तो यहाँ पर जो है आप कहीं ना कहीं अपना रेजिडेंस भी बदल सकते हो। पाइल नंबर 4, अगर आप जो हो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे दैट आई वॉन्ट टू गो इन सम अदर फ्लैट, आई वॉन्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी, एक नया घर बनाना, और ऐसा है कि यहाँ पर जो है ये जो भी घर है बना बनाया घर है, ये इसको आपको रेनोवेट नहीं करना पड़ेगा, ये नया घर है, बना बनाया घर है, तो आप शिफ्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट कैन हैपन हियर। एंड आई फील दैट बिकॉज वी हैव द डेथ यामा हियर, सो आई अगेन फील कि देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन द इन द माइंड सेट। यहाँ पर आपके माइंड सेट में, आपके थॉट प्रोसेस में भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिकॉज अगेन मून रिप्रेजेंट्स माइंड, सो ट्रांसफॉर्मेशन, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आना, एक कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। you're एक्चुअली फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन योर लाइफ मोर देन द नेगेटिव, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आप अपने पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दे रहे हो, नेगेटिव पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, ये आप अपने अंदर जो हो चेंज लेकर आ रहे हो। एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू, आप एक पेट भी खरीद सकते हो, या पेट जो है आप शेल्टर से लेकर आ सकते हो, या फिर चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई जस्ट फील दिस थिंग कि चाइल्ड बर्थ या कोई एक नया पर्सन या एनिमल आपकी लाइफ में आना, दैट कैन इवन हैपन हियर। तो जो बच्चा आपके घर पर आ रहा है, वो बच्चा जो है सबसे पहले वो सोल है, राइट, इट्स अ सोल।
वो सोल जो है उसने सिर्फ बॉडी बदली है, सोल सेम है। अगेन वो पिछले जन्मों के जो थे कार्मिक कनेक्शन वो आपके साथ थे, तो आपकी लाइफ में वो सोल अब आपका बच्चा बन के आ रही है या फिर कोई रिलेटिव बन के आ रही है, बट कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन वो सोल आपके साथ लेकर आ रही है। बट दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म। और ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। And I also feel that you are being, again I'm saying the same thing, you are being positive here in the month of November। आप हर चीज़ जो हो पॉजिटिविटी पर जो हो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दोगे। यहाँ पर आपके लिए आपकी क्या एनर्जी है, पाइल नंबर 4 की यहाँ पर क्या एनर्जी है the month of November? Okay, we have the world card. Again it's about travel, it's about कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू होना, पुरानी ख़त्म होना, नया साइकिल शुरू होना, पुराना ख़त्म होना। Then we have chariot, again it shows travel here, it shows travel, it shows quick decision making as well, because chariot shows the 2 horses, which is about the nakshatra of Ashwini. Ashwini is the first zodiac, first nakshatra in the first zodiac Aries, so it's about quick decision, aggressive decision, quick movement। तो यहाँ पर रीलोकेट भी आप में से कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे हो, प्लस यहाँ पर आप काफ़ी क्विक डिसीजन भी ले रहे हो। एज I've told you, इट्स अबाउट कि नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, पुराना ख़त्म हो रहा है, लाइफ एंड डेथ, आई शुड से डेथ एंड रीबर्थ। एंड अगेन कुछ यहाँ पर चेंज है। सी मून जो है हमेशा वैक्स और वेन करता रहता है, मीनिंग ये मूवमेंट में है, कभी क्रेसेंट मून तो कभी फुल मून, इट्स अबाउट मूवमेंट। मून कार्ड शोज मूवमेंट, यहाँ पर भी मूवमेंट है, चैरिट इज शोइंग द मूवमेंट। सो देयर इज ऑल्सो दिस ट्रैवल कमिंग फॉर यू, पाइल नंबर 4 इन द मंथ ऑफ योर नवंबर। एंड ओवरऑल अगर हम एनर्जी भी देखें आपकी, तो आप चेंज को लेकर काफ़ी, आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, you are accepting change here, you are not rejecting change, you are accepting change। चेंज करने के लिए आप हाँ कह रहे हो, मना नहीं कर रहे हो, और ज़बरदस्ती का चेंज नहीं है ये, आप चाहते भी हो कहीं ना कहीं ये चेंज आपकी लाइफ में आए, और कहीं ना कहीं आप न्यू स्टार्ट करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू फॉर योर एनर्जी, पाइल नंबर 4 की एनर्जी। Okay, so we have the traveling lightly, simplify your life, simplify your life. Again it's about travel, you are moving somewhere, you are going somewhere, and you are also taking decisions here। The chariot shows कि आप अपने जो decisions ले रहे हो लाइफ के इंडिपेंडेंटली ले रहे हो, आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो, वहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर आपको जाना है, एंड यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पर आप जो हो सिंप्लीफाई योर लाइफ भी आया हुआ है। आई रियली फील ये जो सिंप्लीफाई योर लाइफ है, डेथ का, यामा का जो एक कार्ड है, आई मीन इट इज़ अगेन शोइंग कि जो पास्ट में चीज़ें हुई आप उस पर मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी पा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। जो पास्ट में लोगों के साथ आपके एक्सपीरियंसेस हुए आप उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल रहे हो, एंड यू आर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ बाय डूइंग सो। तो ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी पाइल नंबर 4, आई वुड से यू आर वेरी enthusiastic, you want to take next steps in your life, you want to take independent decisions in your life, you are in control of your life, transformation is definitely on the cards। यहाँ पर जो है आपके करियर से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, पाइल नंबर 4 के करियर से रिलेटेड यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है। All right, so we have 10 of swords. Again there is travel, there is again the change, there is again the change, and then we have wise counselor. So it's the Jupiter or Saturnian energy here. I also feel that some of you will also have Jupiter Saturn conjunction in your chart. So first of all here 10 of swords is showing the end of a situation that brings relief, sadness, or both. The opportunity for new happiness, a weight off your shoulders, the end of an addiction, a melodramatic reaction. So again this is about moving on, it's about moving on, and as I've told you the moon card shows the sign of Cancer because Cancer is ruled by moon. So यहाँ पर जो है moon is
the ruler of fourth house, comfort, our homeland. So basically you're moving away from your comfort zone, you are moving ahead of your comfort zone. मतलब जो आपका comfort zone था आप उससे आगे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, मूवमेंट में हो आप इन चार्ज हो, आप डिसीजंस ले रहे हो यहाँ पर. ऑफ कोर्स सैड भी हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर, बट कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी है आगे लाइफ में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है, और आप कैसे अपनी लाइफ को और ईजी बना सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो. यहाँ पर अगेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर बेसिकली कंफर्ट जोन. अगर एक फिजिकल ट्रैवल भी आपके लिए नहीं है, स्टिल ये ट्रैवल तो है. ये एक स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, ये एक इमोशनल ट्रैवल भी हो सकता है. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हो. वाइस काउंसलर जो है, it is showing it is saying unity with the spiritually minded community. Ask the divine for help and trust the answers will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. Especially ये वाली जो line है, compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. It's about comparison कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए. पर जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ट्रेडिशनल है या फिर न्यू आइडिया वाला है कोई डिसीजन, आप वो डिसीजंस आप ले रहे हो. एंड यहाँ पर जो है आई फील कि आपके फादर या कोई फादरली फिगर या ग्रैंड पेरेंट, स्पेशली ग्रैंड फादर और अ मेंटोर, अ मेल पर्सन बेसिकली, आई फील वो आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं. दे कैन गाइड यू हियर. उसके बाद जो उनकी ओपिनियन है और जो आपकी ओपिनियन है, आप दोनों को जो हो एक तरह से कंपेयर करोगे और फिर डिसीजन लोगे. आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रोज और कॉन्स का डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो. ऑफ कोर्स मून रिप्रेजेंट्स इंटुएशन, इंटुएशन की भी सुनोगे, बट इट्स मोर अबाउट कंपेयरिंग द ओपिनियंस, कंपेयरिंग प्रोज एंड कॉन्स. तो उसके बाद आप यहाँ पर कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो. बट वॉट एवर द डिसीजन इज, स्टिल जो यहाँ पर आंसर होगा आपका, यू आर गोना गो अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, अवे फ्रॉम द प्लेस यू आर लिविंग, बिकॉज यहाँ पर जो है ट्रैवल भी है, बट आप अपने कंफर्ट जोन से तो अपने करियर में बाहर ही निकलते हुए नजर आ रहे हो. यहाँ पर जो है आपके लिए किपर्स डेक से क्या मैसेज है. करियर, okay, we have high honor here. Again you are getting the honor, you are being respected in the society. जो भी आपका डिसीजन है आपको रिस्पेक्ट, रिगार्ड लेकर आ रहा है इन द सोसाइटी. कोई काम आप ऐसा कर रहे हो अपने करियर में जिसको लेकर आप भी प्राउड होगे और आपके कहीं ना कहीं जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी प्राउड होंगे. इवन फैमिली कैन बी वेरी प्राउड ऑफ यू, वट एवर डिसीजन यू आर गोना टेक. और कहीं ना कहीं आप कोई मुश्किल स्टेप ही लेते हुए नजर आ रहे हो, कोई ईजी स्टेप इतना. अगेन इट्स अबाउट सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, बट I just got this vibration that some of you are even taking the hard steps in the career and people are proud of you, but कुछ चीज़ें hard भी यहाँ पर. I just got this information, I just felt कि मुझे बताना चाहिए. But yes, you're trying to simplify your life, that is also true. But कोई आप मुश्किल decision भी ले सकते हो that you know what, I'm doing this job, पर अब मैं MBA भी करूँगा. रिजल्ट अच्छा है, अगर मैंने MBA करा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, बट उस MBA को करना मुश्किल तो है, टाइम को मैनेज तो करना पड़ेगा, या फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी. कुछ ना कुछ ऐसा मुश्किल डिसीजन ले रहे हो क्योंकि आपका जो मोटो है, आपका एक मोटो तो नहीं बट आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि सिंप्लीफाई हो जाए मेरी लाइफ. और अगर मेरी लाइफ सिंप्लीफाई होती है ये चीज़ करने से, और चाहे ये चीज़ मुश्किल है पर मैं दूरदृष्टा बन रहा हूँ, मैं दूर की सोच के चल रहा हूँ, तो मुझे ये मुश्किल चीज़ भी करनी चाहिए. तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. यानी आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन भी लो आप नवंबर के मंथ में जो शुरू में ऑफकोर्स मुश्किल हो, बट उसका रिजल्ट जो हो वो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दे. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. When it comes to family love relationship, ये कैसा रहते हैं आपके इस मंथ ऑफ नवंबर में. family love relationship, romantic relationship for pile number 4. Okay, so we have the Ace of Pentacles here. All right, then we have the Lovers card. Beautiful, I should say amazing.
बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। समहाउ यहाँ पर आपके फैमिली या फिर रोमांटिक पार्टनर, दे आर गिविंग यू आइडियाज़ एज वेल, दे आर सपोर्टिंग यू हेयर, दे आर प्राउड ऑफ योर डिसीजंस हेयर, दे आर ऑनरिंग यू, दे आर रिस्पेक्टिंग योर डिसीजंस। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है एंड दे आर गिविंग यू समथिंग हेयर, मे बी अ पीस ऑफ एडवाइस जो आपको हमेशा काम आए, याद रहे। द लवर्स कार्ड शोज कि पैशनेट अच्छा रिलेशनशिप विद योर रोमांटिक पार्टनर, कहीं ना कहीं क्लैरिटी रिलेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं हो रही, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा करना और मुझे वैसा नहीं करना। यहाँ पर वो धोखा या फिर यहाँ पर वो झूठ नहीं नज़र आ रहा है। इन फैमिली एज वेल काफ़ी क्लियर यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे, फैमिली आपके साथ काफ़ी क्लियर रहेगी, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। आई रियली फील आपके रोमांटिक पर्सन या फिर आपके योर फैमिली आर गिविंग यू समथिंग हियर, दे आर गिविंग यू सम money as well, that can even happen because Pentacles is the energy of Taurus, Virgo, Capricorn. So they even are supporting you financially in some way, that can happen here because Taurus is the sign of Kutumb, family assets. So family kahin na kahin aapko help कर रही है financially, that can happen here, they are giving you something here. यहाँ पर एक और आपके लिए जो है मैसेज निकालते हैं लव रिलेशनशिप के डेक से, बार अच्छे से मैं इसको शफल कर लूँ फॉर पाइल नंबर 4. All right, so we have independence. Okay, it says I embrace total independence and I see how empowering that is. Even when I'm in a relationship, I can still be independent by meeting my own needs and creating my own happiness. When I do that, I'm the fullest version of myself and I have much more me to give without needing pieces of me in return. A scientifically impossible expectation. So, I mean, see, marriage or a relationship, it's a like codependency है ये, coexistence है ये. That's why it is also written as scientifically impossible experience because हम इमोशनली ऑफकोर्स डिपेंडेंट होते हैं फिर अपने पार्टनर पर, अपने मैरिज पार्टनर पर या अपने रोमांटिक पार्टनर पर, हम कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर जो है. बट बात आ रही है इंडिपेंडेंस की. कहीं ना कहीं आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इस मंथ. And maybe you even practice because you are going away here. You are gonna be busy in the month of November. तो आपकी खुशी आपके पार्टनर पर नहीं डिपेंड करती और पार्टनर की खुशी आप पर नहीं निर्भर करनी चाहिए, आप पर नहीं डिपेंडेंट होनी चाहिए. यहाँ पर इमोशंस में दोनों को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है कि अगर एक परेशान है, एक बहुत ज़्यादा बिजी है, काम कर रहा है, तो दूसरा तो चलो एंजॉय कर ले, दूसरा तो चलो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर ले. दो दुखी लोगों से तो एक दुखी और दूसरा खुश ठीक है, क्योंकि जो दुखी होता है वो क्या वाइब्रेशन फैलाएगा, दुख के फैलाएगा, टेंशन के फैलाएगा, स्ट्रेस के फैलाएगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करेगा. तो यहाँ पर जो है अगर एक खुश है तो वो खुशी के वाइब्रेशन फैलाएगा और वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा, वो वहाँ उस इन्वायरमेंट में जो है अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहा है ताकि जो एक नेगेटिव पर्सन है वो भी पॉजिटिव हो जाए. तो यहाँ पर दोनों को वो जो इंडिपेंडेंस है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. इंडिपेंडेंस यानी कि अगर मिले तो भी खुश है, अगर नहीं मिल पाए तो भी खुश है, तब भी कोई कंप्लेंट नहीं है. एक दूसरे को वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी यहाँ पर ज़रूरत है. उसका यहाँ पर मैसेज आ रहा है क्योंकि हम कई बार नहीं बात कर पाते, लॉन्ग डिस्टेंस में हम बिज़ी हो जाते हैं. थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशन ये जा सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर. अगर आप एक रोमांटिक रिलेशन में हो तो फैमिली के साथ जो रिलेशन है इट इज़ गोना बी ओके, इट इज़ गोना बी गुड. ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है कि फ्रेंड्स मे टेल यू दैट यू नो व्हाट, यू नेवर रियली कम नाउ, यू डोंट हैंग आउट विद अस, व्हाट्स अप विद यू. तो ये चीज़ें हो सकती है. तो वहाँ पर भी आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई आपकी खुशी मुझ पर नहीं डिपेंडेंट होनी चाहिए, मुझ पर नहीं निर्भर होनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर बिज़ी हूँ. You are very focusing on your career in this month, pile number 4. So this is something which I'm getting. All right. So this was the information for you, pile number 4. And अगर मुझे एक नटशेल में बताना हो कि कैसा रहेगा आपका मंथ नवंबर में, so I see transformation, I see child birth और आप कोई पेट अडॉप्ट कर रहे हो,
आई सी दैट आप जो हो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, डेथ एंड रीबर्थ आप अपने करियर में स्पेशली कर रहे हो। एंड आई सी मूवमेंट एज वेल, फॉरवर्ड मूवमेंट आप यहाँ पर कर रहे हो, इन कंट्रोल, इन चार्ज हो आप अपनी लाइफ के, आप खुद डिसीजंस ले रहे हो। यहाँ पर चेंजेस आपके इस नवंबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी है, और ये कुछ लोगों के लिए आप में से रीलोकेशन भी हो सकता है अपने, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, कि आप अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पर बाहर निकल रहे हो और कुछ ना कुछ ऐसा शुरू कर सकते हो जो आपको जो है थोड़ा हेक्टिक महसूस कराए, थोड़ा हैवी हो आपके लिए, बट अगेन जो उसकी आउटपुट होगी, जो उसका रिजल्ट होगा, वो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करेगा। यहाँ पर अगेन कोई एक पुरानी चीज़ खत्म हो रही है, नया साइकिल जो है आपकी लाइफ में वो शुरू हो रहा है, ये चीज़ नज़र आ रहा है। योर फैमिली इज़ गोना बी वेरी प्राउड ऑफ यू, योर लव्ड रिलेशनशिप्स आर गोना बी क्वाइट प्राउड ऑफ यू, यू आर गोना गेट हाई ऑनर इन द सोसाइटी। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं कोई न्यू आइडिया दे रही है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है। आपका जो रोमांटिक रिलेशन है, अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप या मैरिज में हो, वो भी यहाँ पर अच्छा ही नज़र आ रहा है, बट बोथ नीड टू अंडरस्टैंड, और फ्रेंडशिप में भी नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशनल इंडिपेंडेंस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू, पाइल नंबर 4। ऑलराइट, सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।